Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 12th economics chapter number 5 poverty. So as you all know, we have already seen many parts of this chapter. So today we are here to see the part 10 of the chapter. So students, let us move on with the today's portion of the chapter. Before moving to the current topic, as usual, let us have a short revision of the previous portion. What we have seen in the previous portion. Previously we have seen the social cause of the poverty and the other cause of the poverty. Even we have seen the measures of the reduction of the poverty in that 2 points in a very detailed manner. So let us see that in a very short and summarized way. So first one, social causes ka gender inequality. If you are talking about gender inequality, in that we have seen that still in India we can say that the equality between the gender male and female has not been seen on a proper way. Still female are been lacking up with the malnutrition because society cares about them a very less. Rather than that, today also girls or the women are being considered in that manner that they are made up for the household work, not for the economical development. So many a time due to that lack of malnutrition, lack of education and many portions are being seen up in the women's development. And even in the childbirth, many of the women are getting mortal, died due to the lack of malnutrition. Means the nutrition that they must get, that they are not getting, due to that they are dying up. So this scenario shows us that in the house or the society of a woman, still many problems are being seen up. Rather than that, if you are talking about the earning portion or economical development, financial way, still according comparative to the man, women are paid up less. Rather than that, they are not given that much economic opportunity in the considering world. So these things we have seen in the general inequality. After that, we have seen the other factors or the causes of the poverty, in which we have seen first topic as war. War shows us that in the major after the independence, the India has to fight up many war with China and Pakistan continuously to fight and have the war and get the safety of our land. The India has to decrease the basic needs development, and it depended on the increase or the expenditure on the arms and ammunition, by which the people started to store the things for the future, so that uncertainty in the future, if they will not get, then what will happen? Due to that scarcity, they started to store up, and due to this reason the price rise was being seen up. One side the basic need was being developed, means the resources were being developing, the basic need were being utilized less, and another side the demand and the price raised. So due to this also the poverty was being seen up in the India in a very much more high efficiency. After that, we have seen the second topic, that is defense expenditure. Most defense expenditure, you know that now also in India terrorist attacks are a common thing. In Pakistan they are always giving a terrorist attack to us, one side the Russia, one side the China. Now for example I am telling so many side people are coming and they are fighting with us for the land. So for the safety of India, the India has to get the defensive thing for the safety. We don't want to fight with someone, but if someone is fighting, what is about our safety defense? For that the missiles, the tankers, the submarines were being bought up more, and the investment was being seen up there more. So due to the investment in the arms and ammunition, the development, economic development expenditure got less, due to which the economic development was seen up in a very slow process. So by which the poverty also started to increase in the India. After that, the defective policies, you know that after the second 5-year plan, means first 5-year plan, the second 5-year plan, the government of the India decided to develop the basic and the high industry, by which they started to focus on the heavy and the basic industry only. One side the India is having the agriculture of 70%, but it was being ignored up. Small and cottage industries were being ignored up. The contribution of the small and the cottage industry and the agriculture was very big, immense, but still we ignored that portion, and we planned the policy in such a manner that the employment and national income that were being provided by the agriculture, small scale industry, that were
ever been not seen up, and even we ignore the reduction of the poverty and unemployment. We just saw on the economic growth, so due to which the poverty increased. And after that, many plans and schemes were being introduced to get the poverty reduction and employment. And you know that the government of the India is always changing, and due to that changing nature of the government and the uncontinuity in the formulation of the policy and carry forwarding the continuity of the policies has been failed. Due to this defective policies and the continuity, lack of continuity of the policies, the poverty increased more rather than decreasing. It increased it in a very rapid manner. So here we have completed the causes of the poverty. After that, we have seen the measures in that we have seen 2 points. First one was the increase in the agriculture poverty, agriculture productivity. Second is the development of small and cottage industry. So once if the agriculture is 70% in India, if the productivity per labor will increase, then the production of the agriculture will increase, then the income will increase of the farmer, and due to which the poverty can be reduced. In this manner, the first measure was taken up in this portion, and even for that many plans, public programs and schemes were being included by the government. After that, the development of the small and cottage industries were being seen up, and even the government focused on that in a very well manner. Why? Because it developed the employment opportunity, its contribution on the gross income was a grand and great way, immense way. That's why it was being included in that portion. So these two indicators we have seen up in a very detailed manner. So now today we are going to see up the remaining indicators to measure or to reduce the poverty. So let us move on with the PDF in the further portion to see that in a very detailed manner. So students, let us move on with the today's topic. So today we are going to see from the development of unorganized sector. So what is unorganized sector and how it was being developed? Let us see that how this is considered as a measure to reduce the poverty. So unorganized sector includes vegetable vendors, mansions in the construction sector, agriculture laborer, vendor, etc. To improve the condition of this worker, National Commission has recommended to decide the working condition, life insurance, health, old age pension and other social security measures. Moreover, for small and marginal farmers, if it is recommended to provide them with irrigation facility and loan facility. So unorganized sector मतलब जिसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा गया, जैसे कि वेजिटेबल वेंडर्स को ले लो, जो कड़िया काम करते हैं कंस्ट्रक्शन के सेक्टर पे उनका ले लो, एग्रीकल्चर लेबरर ले लो जो दिन में सिर्फ एक वेजिस के ऊपर काम करने एग्रीकल्चर लैंड में जाते हैं वो, फिर फेरिया वेंडर्स जो हमारे यहाँ सब्जियाँ वगैरह बेचने आता है दैट वेंडर्स. तो ये लोगों की कंडीशन अगर इम्प्रूव किया जाए तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि पॉवर्टी में ज़्यादातर यही लोग देखे जाते. इसीलिए नेशनल कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि इनका वर्किंग कंडीशन और इनका वेजेस के ऊपर डिसाइड होना चाहिए. जैसे दिन का आप अभी देखो कड़िया काम वालों का सुबह से 10 से लेके शाम के 5 बजे तक या 6 बजे तक का ही काम करना चाहिए, एक रूल है, और पर डे उनको 350 तो मिलना ही चाहिए. इस तरीके का वर्क कंडीशन डिसाइड किया गया. इवन लाइफ इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ ले लो, ओल्ड एज पेंशन ले लो, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स ले लो, ऐसे लोगों के लिए अच्छे से मिलना चाहिए ये माना गया. नॉट ओनली दिस पोर्शन, जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं जिनका मार्जिनल फार्मिंग होती है उन लोगों के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज दिया गया, जैसे कि उनको इरिगेशन फैसिलिटी मिलना चाहिए, लोन का फैसिलिटी गवर्नमेंट से ही उनको मिलना चाहिए. इस तरीके का कहीं ना कहीं जो अनऑर्गेनाइज्ड, जो अभी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देखा जाता है, उस सेक्टर में भी डेवलपमेंट लाने की कोशिश किया गया. यू नो दैट इन दिस स्कीम जो हमारे यहाँ वेंडर्स आते हैं मार्केट पे, जो लोग खड़े रहते लारी लेके, उनको आईडी कार्ड भी दिया गया था ताकि उनको कोई भी कॉर्पोरेट जो होते हैं जैसे दबान वाले लोग आते हैं वो लोग परेशान ना करें, इसीलिए पर्टिकुलरली उनको एक प्लेस दिया गया, उनको उसका आईडी कार्ड दिया गया. इस तरीके से उनकी वर्किंग कंडीशन को भी डेवलप करने का कोशिश किया गया है. सो नाउ लेट अस सी द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी. Government uses tax policies to reduce inequality of income and poverty by redistributing income. To fulfill this objective, the government makes such a policy wherein most tax is imposed on rich class, which can afford the tax, and less tax is imposed on poor class.
and given tax concession. This way, the government collects a fund by imposing tax on rich people and make expenses on welfare-oriented programs for the poor people. As a result, socio-economic condition of the poor improves and reduction in income inequality and the poverty is seen. So यहाँ पे गवर्नमेंट जो टैक्स पॉलिसी है उसको भी इस तरीके से फ्रेम करता है ताकि इनकम की जो इनइक्वालिटी है, जैसे मैंने बोला कोई एक महीने का 10 लाख कमा रहा है, कोई एक महीने का 1000 रुपया कमा रहा है, तो यहाँ इनकम टैक्स भी इस तरीके से देखा जाता है, जो ज़्यादा कमा रहा है उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? वो टैक्स को लेके गवर्नमेंट क्या करने वाला है, खुद का कुछ नो, वो कहीं ना कहीं वापस उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ही वो पैसे लगाने वाला है। उस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया जाता है कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज टैक्स के ऊपर इम्पोज करे वो कैसा इम्पोज करता है, जो रिच क्लास है उनको ज़्यादा टैक्स भरना है क्योंकि वो अफोर्ड भी कर सकता है। जो महीने 10 लाख कमाता है अगर उसको 20% टैक्स भरना है, यानी अगर उसको 2 लाख भरना है तो वो भर सकता है। तो इस तरीके से उसको जो है ज़्यादा टैक्स भरना है, और जो कम कमाता है पुअर क्लास का है उसको कम टैक्स भरना है। तो यू नो दैट स्टार्टिंग स्लैब जो है वो 5% से स्टार्ट होता है और 60% के 45% तक देखा जाता है। तो इस तरीके से 5% के स्लैब से देखा जाता है। तो जितना स्लैब भी आपने देखा तो 0 to 2,50,000 को कुछ नहीं भरना है। 2,50,000 से पर ईयर 5 लाख तक जम कमाते हो उसको 5 to 10% भरना है। इस तरीके से चीज़ें देखी जाती है टैक्स स्लैब के अंदर। और जो कम भरता है, जैसे मैंने बोला 0 से लेके 2,50,000 तक कमाते हैं तो उनको कोई टैक्स नहीं भरना, तो टैक्स कंसेशन भी ऐसे लोगों को दिया जाता है। गवर्नमेंट क्या करता है, ये फंड यानी एज ए टैक्स कलेक्ट करता है अमीर लोगों से और उसका एक्सपेंस खर्चा जैसे मैंने बोला लोगों की वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम में करता है, जो कहीं ना कहीं गरीब लोगों को हेल्प आउट करता है। और एज ए रिजल्ट क्या होता है, सोशल कंडीशन जो गरीब का इम्प्रूव होता है और वहाँ पे जो इनइक्वालिटी होता है इनकम का उसका रिडक्शन देखा जाता है और पॉवर्टी को भी कम होते नजर आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से टैक्स पॉलिसीज देखे जाते हैं। नेक्स्ट इट इज राइज इन ह्यूमन capital investment. Let us read that and know that in a very detailed manner. Developed nation where large scale investment is made on education, skill development have very low level of unemployment. As a result, poverty is less. High level of education satisfies the requirement of various employment opportunity and choices among workers. Skill development increases the productivity of worker and reflects in the high wages. For that, at workplace, continuous investment is required for training and resources. Rise in human capital investment. What is human capital? Human यानी इंसानों के ऊपर जो कैपिटल लगाया जाता है उसमें ज़्यादा बढ़ाओ। जैसे कि इंसान को डेवलप, अभी आपके पेरेंट्स आपके ऊपर जो पैसे लगा रहे हो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि आपके ऊपर जो अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप अच्छा पढ़ लिख लेते हो, कल उठ के अच्छा अर्न करोगे, आप उनको दो के ना दो बट कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा हुआ है ये माना जाएगा। उसी तरीके से डेवलप्ड नेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेवलप्ड नेशन जो है ज़्यादातर पैसा किस इन्वेस्टमेंट में लगाता है, तो एजुकेशन में, लोगों की स्किल डेवलप करने में, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की लेवल जो है वो कम हो जाता है। अगर आप पढ़े लिखे होगे, आप स्किल्ड होगे तो आपको तो जॉब कहीं पे भी मिलने वाला है, आप जॉब करने वाले। अगर आप जॉब करोगे, पैसे कमाओगे तो पॉवर्टी अपने आप ही कम हो जाएगा। इस तरीके से हाई लेवल ऑफ एजुकेशन क्या करता है, हमारी रिक्वायरमेंट, जैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और हमें वर्कर को चॉइस मिलता है एम्प्लॉयमेंट का और वो अपने बेसिक नीड्स जो है एम्प्लॉयमेंट के बाद फुलफिल कर सकता है। उसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट यानी आपकी आवृत्ति, आपकी जो एफिशिएंसी है, स्किल है वो डेवलप किया जाए, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा एज ए वर्कर तो आपका वेजेस भी बढ़ता जाएगा। सो इसीलिए वर्क प्लेस के अंदर कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट जैसे ट्रेनिंग देना, रिसर्च करना, ये सारी ऊपर उसका खर्चा ज़्यादातर देखा जाता। तो ऐसे ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज गवर्नमेंट करना चाहता है ताकि जिससे पॉवर्टी डिक्रीज हुआ। इवन स्किल डेवलपमेंट, यू नो दैट स्किल इंडिया अभी बीच में निकला था, कुशल
भारत, जिसमें आपको जो है आपकी स्किल्स, आप 10th 12th कंप्लीटेड हो, आप फेल हो, अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो तो आप उसके ऊपर एक कोर्स कर सकते हो, उस कोर्स के ऊपर प्रैक्टिकली आपको जॉब मिल जाता है, जिसका बेसिक बोलते हैं सैलरी 10,000 to 15,000 देखा जाता है। तो इस तरीके का डेवलपमेंट स्कीम्स भी गवर्नमेंट के थ्रू देखा गया है। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट। To provide nutritive food and food security to poor people, it should be made available at reasonable rate, which will also directly reduce poverty. Under public distribution system in India, we have ration shops where rural and urban people poor get basic utility goods at reasonable price. During drought and scarcity, the responsibility of public distribution system is more to satisfy the basic need of the poor. इवन गुड्स और सर्विसेज को भी रीजनेबल रेट्स में लोगों तक पहुंचाने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक न्यूट्रिटिव फूड मिलना चाहिए, हमारा फूड का खाने पीने का सिक्योरिटी गरीबों को मिलना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने रीजनेबल रेट में डायरेक्टली पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे रेशनिंग का दुकान किया। यू नो दैट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया के अंदर अगर आप बात करते हो रेशन के दुकान होते हैं, सो वो गाँव में भी होते हैं और सिटीज़ में भी होते हैं। जहाँ जो गरीब होता है, यू नो दैट बीपीएल का रेशन कार्ड दिया जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन का रेशन कार्ड, जो गरीब होता है उसे बीपीएल का रेशन कार्ड मिलता है, जिसे बेसिक यूटिलिटी यानी उसको जितना खाने पीने की चीज़ें मिलना चाहिए वो उसको रीजनेबल प्राइस में उस रेशन कार्ड के अंदर उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी रेशन के दुकान से उसको मिल जाए। इवन जब सूखा पड़ता है, स्कैरसिटी यानी कोई चीज़ की कमी आ जाए, जैसे अभी पैंडेमिक आया था, पैंडेमिक में तो एपीएल वालों को भी दिया गया था। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में लॉकडाउन देखा गया था, कोई जॉब नहीं कर रहा था, किसी के पास पैसे हो ना हो, इस इंटेंशन से गवर्नमेंट ने जो है रेशन के दुकान में जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज़ करके लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश किया। इस तरीके से रीजनेबल रेट्स पे गुड्स एंड सर्विसेज कहीं ना कहीं गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश किया जाता है। सो I don't know what about here, but I was having an information in lockdown. I was been there in Chennai. आई सॉ के रेशन के कार्ड पे एपीएल हो के बीपीएल हो ये नहीं देखा गया था। पैंडेमिक में वीट, राइस, चना का दाल ये सारा 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो दिए जा रहे थे। दैट्स व्हाई आई नो दैट पैंडेमिक के टाइम पे भी इस तरीके का रीजनेबल रेट में जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। इवन सूखा पड़ना या कुछ नेचुरल कॉज की वजह से कोई पैंडेमिक देखा जाता तो उस टाइम पे गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रीजनेबल रेट में लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाए। बाकी पैंडेमिक ना हो, नॉर्मल सिचुएशन में बेसिक नीड हमेशा 24/7 जैसे हम बोलते हैं उसी तरीके से 12 मंथ्स ये पुअर को कहीं ना कहीं रीजनेबल रेट में इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू चीज़ें पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट इट इज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में बहुत सारी अपडेट्स देखे गए। लेट अस सी दैट इन ए वेरी डिटेल्ड मैनर। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एडिकेशंस आर interrelated. Some important employment programs for poverty educations are as under. So employment generation अगर होगा, अगर लोगों को नौकरी मिलेगी तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी को हटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पॉवर्टी को कम करना दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड ये बोला जाता है। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में बहुत सारी चेंजेस देखे गए पॉवर्टी को हटाने के लिए या ख़त्म करने के लिए, जो कि नीचे दिए गए, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सो लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। During 6th 5-year plan, various agencies started different programs for rural poor. All these programs were merged in IRDP on 2nd October 1980. The main objective of IRDP is to encourage poor families for self-employment so that they can get more income to rise above the poverty line. This program focused on few special groups which include small and marginal farmers, agriculture laborers and rural artisans. सो यहाँ पे 6th 5-year प्लान जब देखा गया था तब बहुत सारे एजेंसी ने क्या किया, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम निकाले थे जो सिर्फ और सिर्फ रूरल पुअर यानी जो गांव के गरीब थे उनके लिए। यहाँ पे इस प्रोग्राम को जो है IRDP इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मर्ज कर दिया गया था 2 अक्टूबर 1980 से। मेन ऑब्जेक्टिव IRDP की अगर हम बात करते तो सिर्फ और सिर्फ गरीब फैमिलीज जो है उनको एंकरेज करके खुद की एम्प्लॉयमेंट
आत्मनिर्भर जैसे हम बोलते हैं वैसे खुद की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और इनकम में इंक्रीज करने की कोशिश करे, जिससे वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए। तो ये जो प्रोग्राम है स्पेशली कुछ स्पेशल ग्रुप के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा था, जिनमें से स्मॉल, छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को इंक्लूड किया गया था। एग्रीकल्चर लेबर, जैसे मैंने बोला दिन में सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड में काम करने के लिए भी लेबर्स होते हैं, उस लेबर को, और रूरल आर्टिशंस, जैसे आपने देखा हो गाँव में मिट्टी का घड़े बनाने वाले, हाथ से वो टोकरियां बनाने वाले, ऐसे रूरल आर्टिशंस थे, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। सो व्हाट इज दैट, लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल मैनर। दिस वे द IRDP प्रोग्राम इज नोन एज एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। इस तरीके से जो IRDP यानी इंडियन या इंटीग्रेटेड आप बोल सकते हो, ओके, सो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम यानी पॉवर्टी को हटा के यानी पॉवर्टी को कम करने का एक प्रोग्राम माना जाता है। फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर इंक्लूडेड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नीचे के कुछ प्रोग्राम जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में इंक्लूड किए गए थे, जिसमें से फर्स्ट है IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, TRYSEM ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ for self-development, DWCRA development of women and child in rural area, MSW Millions Well Scheme, SITRA means supplying improved toolkit to rural artisans, Ganga Welfare Scheme. So मुझे ये जो WCRA डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया, इसमें एक नॉलेज है, तो शायद जो नॉलेज है वो मुझे शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो DWCRA है ये स्कूल में अप्लाई किया जाता है। जैसे स्कूल में शाम के टाइम में जो गांव की औरतें, उनको ब्यूटी पार्लर का, रदर देन दैट मेहंदी का, फिर सिलाई का, ये सारी चीज़ों का ट्रेनिंग क्लास दिया जाता है। और चाइल्ड को आप कैसे दोगे, ये टॉपिक बहुत ही बेस्ट है। स्कूल में एक पीरियड दिया जाता है जो कि स्किल डेवलपमेंट का होता है, जिसमें आपने देखा हो तो वायर की बास्केट बनाना, हाथ से जो ऊन होता है उसकी फ्लावर्स बनाना, उसके डॉल्स बनाना, रदर देन दैट एम्ब्रॉयडरिंग का वर्क, ये सारी चीज़ें स्कूल में फ्रॉम 3rd स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड एक पीरियड में सिखाया जाता है, जिससे उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, घर बैठे बैठे अगर आप कोई टॉयज़ वगैरह इस तरीके से बना के बेचो तो भी आप इनकम कर सकते हो। तो इस तरीके का गाँव में ये चीज़ देखा जाता है। मुझे इसलिए इसका नॉलेज है क्योंकि तमिलनाडु में मोस्ट ऑफ स्कूल में ये चीज़ें देखी जाती है एंड दिस इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग, ठीक है। तो इस तरीके का स्कीम भी देखा जाता है। तो एक स्कीम का मुझे पता था, आई हैव टोल्ड यू, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग स्कीम देखे जाते हैं। जैसे सित्रा होता है, रूरल आर्टिशियंस जो होते हैं उनको जो है टूल किट दिया जाता है, जैसे कि मॉडिफाइड नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो टूल किट होते हैं जो उनकी काम को कम कर सकता है, इजी कर सकता है, वैसे वाले टूल किट्स उनको प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। सो ऐसे बहुत सारे जो है गवर्नमेंट का हेल्पिंग हैंड बनता है इन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। सो ऑन 1 अप्रैल 1999 IRDP एंड अदर प्रोग्राम इंटीग्रेटेड विथ इट वर मर्ज्ड एंड नेम्ड एज स्वर्ण जयंती Gram Swarojgar Yojana. Under this scheme in rural area, apart from the development of small trade, self-help groups were also provided infrastructure facility, technology loan facility, market for final goods to rural पुअर्स। सो इसके अलावा 1 अप्रैल 1999 में IRDP और अदर प्रोग्राम ने इंटीग्रेट मतलब मर्जअप हो जाना, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होके मर्जअप हो गए और उन सब ने यानी ऊपर जितने बताए गए सब मिलके एक ही प्रोग्राम के नाम के अंदर आ गए, जिसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और इस स्कीम के अंदर रूरल एरिया के अंदर कोई भी स्मॉल ट्रेड हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, ये लोगों को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और इनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है, इवन इनकी जो प्रोडक्ट्स बनती है इस प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट्स को रूरल पुअर्स का जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उसको मार्केट तक पहुंचाने का भी हेल्प गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है। सो आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक in a very well manner. So now let us move on with the today's portion of the small summarization of the topic that we have seen today.
Students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have completed the measures of the reduce of poverty, which means completed up to 5 to 6 points. We have started up with the employment schemes. What were the schemes that were introduced by the government? So up till date we have seen in a very detailed manner. So let us move on with a short summarization of the topic that we have seen. So first one was development of unorganized sector. You know that vendors, street vendors, rather than that the persons who are not having a proper organized sector were considered as the unorganized sector. Even इस unorganized sectors में भी working condition कैसा होना चाहिए वैसा नेशनल कमीशन ने डिसाइड अप किया है. rather than that ये डिसाइड अप करते हुए इनकी डेवलपमेंट कैसी की जानी चाहिए वो सारी चीज़ों के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया है. इवन आई हैव गिव यू द एग्जांपल, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको आईडी कार्ड एक पर्टिकुलर प्लेस कर दे दिया गया कि यहीं पे आपको मार्केट लगाना और यहीं पे आप अर्न अप कर सकते हो. इस तरीके से कहीं ना कहीं उनकी इनकम को इंक्रीज करने का एक कोशिश भी किया गया है, जिससे पॉवर्टी लाइन के नीचे या पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं जो है गरीबी हटाया जा सकता है. आफ्टर दैट राइज इन द ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. आपको पता है कि एक ह्यूमन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नेसेसरी माना जाता है. डेवलप्ड कंट्री की अगर हम बात करते तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों की स्किल्स और एजुकेशन को डेवलप करने की कोशिश किया जाता है. इन द सेम सेंस हर एक जगह पे एजुकेशन और स्किल में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं उनकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग में होना चाहिए, जिससे उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़े. उसके साथ साथ उनकी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो, जिससे उनकी वेज रेट इंक्रीज हो, उनकी एफिशिएंसी की वजह से, उनकी एजुकेशन की वजह से उन्हें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले और उनकी एफिशिएंसी हो उस हिसाब से उनकी हाई वेज रेट देखा जाए, जिससे कहीं ना कहीं पॉवर्टी को कम किया जा सकता है. ये भी एक रीजन की तरह देखा गया है. आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट कि टैक्स पॉलिसी, इवन गवर्नमेंट जो है टैक्स पॉलिसी को भी फ्रेम अप करने पे बहुत ध्यान देता है. टैक्स पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, यू नो दैट हाई क्लास पीपल से ज़्यादा टैक्स लेना और लो क्लास पीपल से कम लेना और उससे भी अगर कम हो तो उनको टैक्स का कंसेशन देना, इस तरीके का टैक्स फॉर्मुलेशन गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है. और उसके अंदर अगर आप डिटेल में देखते हो, जो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, रिच क्लास पीपल जो अफोर्डेबल करने के लायक है और वो उसके सक्षम है, इसीलिए उनसे लिया जा रहा है, उस पैसे को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करता है, जिससे इनकम अनइक्वालिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है वो कम होकर लोगों की वेलफेयर ज़्यादा हो पाए और जो है रिडक्शन इन पॉवर्टी देखा जा सके. इसका ध्यान गवर्नमेंट इस तरीके से टैक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क पर भी देखा जाता है. रेदर देन दैट गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रीजनेबल रेट. आपको पता है इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर हमने बहुत डिटेल में ये देखा था कि रेशन के दुकान होते, तो रेशन के दुकान से जो गरीब है उन लोगों को कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिटिव फूड और जो चीज़ें बेसिक यूटिलिटी के लिए चाहिए वो रीजनेबल रेट में या तो फ्री में गवर्नमेंट उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जो कि एक अच्छी चीज़ माना जाता है. After that we have seen the employment schemes और development oriented program. So इसके अंदर हमने ये देखा कि जो employment oriented program है कहीं ना कहीं employment opportunity गरीबी को हटा सकता है. तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, ये माना जाता है और इस कहीं ना कहीं ये चीज़ को बहुत डिटेल में समझना नेसेसरी है. जिसके अंदर हमने फर्स्ट देखा डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. IRDP जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो देखा गया था इंडिपेंडेंस के बाद, उसमें हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं वो गांव के अंदर ही ज़्यादा फोकस करता है और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं या जो रूरल आर्टिजन्स होते हैं या जो डेली वेजर्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए ये जो स्कीम है ये इम्प्लाई किया गया था. ये पॉलिसी के अंदर इनके ऊपर फोकस किया गया, इनके स्किल्स को डेवलप किया गया, इनको गाइड किया गया और इनके लिए बहुत सारी वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाए गए, जिसके अंदर हमने 7 वेलफेयर प्रोग्राम को बहुत ही डिटेल में देखा. बट 1999 में IRDP ने क्या किया, इसकी जो अमेंडमेंट यानी जितने 7 प्रोग्राम देखे गए ये सारे लोग मिल के सुवर्ण ग्रामीण जयंती रोजगार योजना करके एक योजना की और ये लोगों ने एक कमेटी बना दिया जहाँ पे इन लोगों को टेक्नोलॉजी और लोन और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करके उनकी जो फाइनल गुड्स है उसको मार्केट तक पहुँचाने वाला काम भी ये लोगों ने कैरी फॉरवर्ड करने लगा, जिससे अगर रूरल एरिया में लोग अपना एम्प्लॉयमेंट खुद करेंगे यानी अपना खुद ही कुछ करके उससे इनकम ऑफ
राइज करने की कोशिश करेंगे, राइज ऑफ इनकम करने की कोशिश करेंगे, तो उसके कहीं ना कहीं उनका जो है पॉवर्टी रिडक्ट किया जा सकता है। इस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर फर्स्ट टॉपिक में देखा गया है। सो आज का टॉपिक हमने यहाँ तक देखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक in a very well manner. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.